Today on 20th of June 2025, we will have a look at the concept and structure and operations of Superior Society WhatsApp University. This term WhatsApp University is used as a joke term, as a meme term. But if we actually look at the concept of university, it is essentially an exchange of information between teacher and student, between two students, two teachers, two scholars, two practitioners of that ideology. And if that communication, if that information exchange is happening on WhatsApp mindfully by mature people, then there should not be any joke about it, and we can call it pridefully, we can call it a WhatsApp university which is in operations, smooth operations for 9 years, which has about 20 WhatsApp groups in addition to WhatsApp status. My WhatsApp status 8355909692, that can be seen if you send your full name and city there. If your number is saved with me, then you can look at my WhatsApp status, which is like a direct communication between me and my superior society. And the first WhatsApp group is Teachings of Superiority, which is a community interaction between me and superior society through text, voice note, question, suggestion, message, and report, etc. And group calls, con calls daily. Now, SS marketing, people who are SS marketing and atomic jobs, people who are willing to do small jobs, and people are creating some content, selling something, then they can promote themselves in SS marketing. And who are such people? People are selling their astrology services, tarot card, driving school, YouTube channel, Instagram, what else? Marketing, Mr. Pokle, digital marketing, etc. Now, SS language used to be English for superiors. Now, you need to understand what is the concept behind this university. क्या मिस्टर पोकले आपको पता है ये क्या है? मतलब जैसे आज यहाँ पर बात हो रही थी तो पीपल वर डिस्कसिंग कि ये YouTube चैनल वाले कितना कमा लेते होंगे और वो YouTube चैनल वाले कितना कमा लेते होंगे, इसमें तो बहुत कमाई है, सो लेट्स बिकम यूट्यूबर्स. तो वो पैसे से ड्रिवन थे. तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, ये किस चीज से ड्रिवन चीज है विच इज सस्टेनिंग फॉर 9 years विदाउट अ ब्रेक? Human development. Yes, human evolution with basic earth. So what is this? So if I exist and if I have a way of living, if I have some information, then there are some people who would like to be associated with me. So they get associated with me through WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram. And the most easy way, because all this thing has to be through basic year, through laws of nature. Simple, free, ikigai, using the laws of nature, not using the laws of economics and this and internet and all that, without violating them. We have to go as natural and as organic as possible. So WhatsApp status is that way to communicate between to have a communication between me and the superior society. But there is another formal way, this group TOS, and then in order for this community to thrive, to survive, to sustain, people have to make money, and people want to make some money. Basically 5C, 5 consciousness: health consciousness, wealth consciousness, spiritual consciousness, communication consciousness, and political consciousness. Health consciousness report, question, सजेशन, मैसेज, रिपोर्ट कि हेल्थ कॉन्शियसनेस के बारे में तुम क्या जानते हो, अपनी हेल्थ सुधारने के बारे में क्या क्या प्रयास किए हैं, क्या क्या उससे रिजल्ट निकले और अभी कैसे कर रहे हो. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, विलेज प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, वो यहां से उठा कर ले आओ, ठीक है. और कोई फ्री दे रहा है, हमको तो लोग फ्री देते ही हैं,
बेसिकली यहाँ से सब लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हमको दे देते हैं, तो हमारी हेल्थ कॉन्शियसनेस उसमें हो जाती है। वेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए पूरा आ गया, ठीक है। एटॉमिक जॉब्स आ गए। स्पिरिचुअल मीन्स सेल्फ एक्सप्रेशन, तो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए तो ये पूरा काम है। कम्युनिकेशन इज वेरी नेसेसरी, तो एसएस लैंग्वेज, एसएस संस्कृत, और यहां पर भी कुछ ना कुछ बेचना शुरू करोगे तो कम्युनिकेशन है, और यहां पर तो कम्युनिकेशन आपका है ही। और इसके अलावा 5वें नंबर पर यदि हम ऐड कर सकें तो एसएस चैट्स है, जिसके अंदर 24/7 लोग आपस में चैट कर सकते हैं, जो कि यहां पर अलाउड नहीं है, और भी कहीं अलाउड नहीं है, जो कि यहां पर अलाउड है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कुछ ऐसा एजेंडा था। बेसिक चीजें थी। सो इफ आई एम अ ह्यूमन, आई वुड लाइक टू बी इन कम्युनिकेशन विद अदर ह्यूमंस इन रियल और थ्रू इंटरनेट। सो लाइक वो लोग कौन हो सकते हैं? वो लोग तो वही होंगे ना जो मेरी ऐसी सोच रखते हैं, और जिस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, तो उन तक मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचाना और उनकी रिपोर्ट मुझ तक पहुंचाना, तो ये कम्युनिकेशन है। और इस पूरे चक्कर के अंदर वो कुछ इनकम कर लें और फाइनेंशियल एक्सरसाइजेस कर लें, एटॉमिक जॉब्स कर लें, और लोगों को करते हुए देख लें। और यदि आपके पास पैसा है तो उन लोगों पर इन्वेस्ट कर दें। पीपल कैन इन्वेस्ट, पीपल कैन मेक कंपनी आउट ऑफ इट, people have made company out of it. This is a whole company. I've made a company out of people who are like minded. So SS language used to be SS English. Now SS English क्या है कि इंग्लिश कहां से शुरू हुई? अब इंग्लिश की बेसिकियत क्या है? तो सरवाइव करने के लिए या तो भारत का पुराना तरीका ठीक था या आधुनिक तरीका ठीक था। तो भारत का पुराना जो तरीका है वो तो गांव में जाकर खेती करने का है, तो वैसे तो लोग सरवाइव कर ही सकते हैं तो करो, बट लोग अपने नए तरीके से सरवाइव करना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से, मॉडर्न तरीके से। सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सिटीज इन मॉडर्न वे, इंग्लिश इज अ सर्वाइवल टूल। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे फिरंगी हो गया या मैं इंटरनेशनल हो गया, ठीक है। तो एक सर्वाइवल टूल है, तो वो आना जरूरी है। तो इंग्लिश के साथ साथ में वहां पर आपका स्पेनिश भी जुड़ने लगा, और फिर जर्मन भी जुड़ने लगा, और फिर कुछ चाइनीज भी लोग करने लगे। तो ये सब वहां पर आ गया, एसएस लैंग्वेज बना दिया उसका, एसएस लैंग्वेज, और झंडे लगा दिए वहां पर। तो इसमें हमारा आपको ये कहना है कि इसमें क्या होगा, टीओएस में रिकरिंग इवेंट्स होते हैं। रिकरिंग इवेंट्स की एक लिस्ट है। सो दोज रिकरिंग इवेंट्स आर टू बी फॉलोड बाय एडमिन्स। एवरी ग्रुप हैज 20, ideally 20 admins must be there, but 10 admins are already there. So इसमें कुछ रेगुलर इवेंट्स हैं, इसमें कुछ रेगुलर इवेंट्स हैं, इसमें कुछ रेगुलर इवेंट्स हैं, और इसमें कुछ रेगुलर इवेंट्स हैं। तो एसएस लैंग्वेज का मैं रेगुलर इवेंट आपको बताता हूं। सो हाउ मेनी पीपल आर देयर? दे मस्ट बी सम 100 people, or let's say even 20 people are there. So all 20 people are supposed to be active there. What I'm trying to say, minimum 20 people are supposed to be active there, means active daily through text or voice note. Text, just one word. If you are learning Spanish, just one word of Spanish. And if you are learning Spanish, I believe you are already on Duolingo. Yes. Remember, we have to finish our Duolingo. So Duolingo, share Duolingo achievements, your profile link, get associated with each other on Duolingo, and begin your communication there in Spanish, German, English. Make friends there. Sanskrit is not there, but Sanskrit is here. Sanskrit also same thing. 20, मिनिमम 20 पीपल यहां पर आप बना दीजिए डेली एक्टिव। क्या करना है? एक टेक्स्ट लिखना है या फिर वॉइस नोट देना है, ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ एसएस चैट्स इज ऑलरेडी देयर। लेट्स कम बैक टू एसएस मार्केटिंग। सो लेट्स टेक अ सैंपल ऑफ फ्यू पीपल in order to understand the concept of SS marketing ABCD. In order to understand the concept of SS marketing ABCD, let's take an example of 3 sellers. Let's say first seller is you, Mr. Pokle. So Pokle is selling digital marketing.
गार्गी एस्ट्रोलॉजर जी हैं यहाँ पर। ये एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इनका हो ही गया, एस्ट्रोलॉजी। देन राहुल जैन वी हैव, एंड देन वी हैव राजेश धारकर। So ABCD means putting all the sellers in alphabetic order. Only those sellers which have number, which have provided their number. So let's say Pokle has provided, Pokle has not provided number. So no number. So Gargi ji has provided number, और ये प्रोवाइडेड नंबर एंड डिड नॉट प्रोवाइड नंबर। तो ऐसा क्या है कि ये जो पोकले है ना, दिस पोकले विल कम हियर। So G alphabetic order G and then R. You understand? So this is the SS marketing ABCD. So this whole text, this whole piece of text will be sent, should be sent there every day, and every seller like who already has his name but doesn't have the number, तो वो क्या अपना नंबर डाल सकता है। वो किस नंबर डालेगा? वो ABCD को देखेगा, he will copy the whole text and he will put his number if number is not there, and if his name is not there, then what he'll do is he'll put his name there, he'll put his number there, and then he'll resend back the whole text he'll send back. You understand? हाँ दादा, हाँ सो जाएंगे। तो क्या अभी सोने वाले हैं दादा? तो आप समझ गए ना। तो इस प्रकार से एसएस मार्केटिंग का टेक्स्ट बन जाएगा और वो सेंड कर देगा। और एसएस मार्केटिंग, जो लोग एसएस मार्केटिंग में कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, उनका भी कुछ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा। मतलब स्टैंडर्ड एटॉमिक रिकरिंग टास्क, ऐसा कुछ बना सकते हैं। स्टैंडर्ड एटॉमिक रिकरिंग टास्क है ना, स्टैंडर्ड एटॉमिक रिकरिंग टास्क। Standard atomic recurring tasks. So let's take an example of Mr. Pokle. Mr. Pokle, first thing, Mr. Pokle did not have number. Mr. Pokle did not even have the name. Mr. Pokle wasn't even aware of SS marketing ABCD. Were you aware of SS marketing ABCD? So now you know SS marketing ABCD. So through one of the sellers or through somehow you will find that whole text, and then you will see where is the P. You will see where is the P, and then you will put Prajwal Pokle, digital marketing, this number, this link, whatever. So like Rahul Jain has put his number and his details, you can put your number in detail and in the alphabetical order, and only in the alphabetical order of the people who have put their numbers. जब उनके नंबर वालों के जो नाम खत्म हो जाएंगे ना, तब बीच में एक डॉटेड लाइन आएगी और उसके बाद फिर से एबीसीडी शुरू होगा सिर्फ नाम वालों का, क्योंकि उन लोगों ने इतना माइंडफुली चेक नहीं किया उस एबीसीडी को कि यार मेरा नाम भी है इसमें लेकिन मेरा नंबर नहीं है, या फिर एबीसीडी तो है लेकिन मेरा नाम तो के से आता है, वो के से तो मेरा नाम है ही नहीं। आप समझ गए? तो के से तो मेरा नाम है ही नहीं, तो वो बोलेगा क्यों नहीं है, तो वो अपना डाल देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका बन जाएगा। अब स्टैंडर्ड एटॉमिक रिकरिंग टास्क कौन से हो जाएंगे? मतलब रोज एक्टिविटी करनी है आपको, व्हाट्सएप पर रोज करनी है, फेसबुक पर रोज करनी है, वाईटी पर रोज करनी है, आईजी पर रोज करनी है, टीजे पर रोज करनी है। एक रिलीजन है बेसिकली, दिस इज अ रिलीजन। ये आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है ना, सेल्फ एक्सप्रेशन धर्म है, स्वभाव धर्म है, तो आपकी अभिव्यक्ति धर्म है। क्या समझे? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति धर्म है। तो अभिव्यक्ति क्या है? ये इंसान की अभिव्यक्ति है। कोई इंसान क्या बेचना चाहता है? ये ड्राइविंग स्कूल बेचना चाहता है, और कोई रिपोर्ट ऐसे देना चाहता है, और कोई इस कारण से सुपीरियर सोसाइटी में जुड़ा रहना चाहता है, कोई ये लैंग्वेज सीखना चाहता है, फिर संस्कृत पर भी आते हैं। तो ये है, तो मार्केटिंग पे जाते हैं। तो ये हो गया मार्केटिंग पे क्या हो गया, सेल्फ एक्सप्रेशन हो गया था आपका। तो हाँ, ये सेल्फ एक्सप्रेशन धर्म है, धर्म बता रहा, धर्म है। तो धर्म है, तो ये आपकी नमाज है, ये आपकी पूजा, ये आपकी वर्शिप है। क्या वर्शिप है आपकी? कि आप रोज जाके एक अपनी पोस्ट बनाकर रखो, जैसे प्रज्वल पोकले डिजिटल मार्केटिंग। अब आप देखो, या तो खुद अपनी एक्सप्रेशन से बना दो, और यू कॉपी योर कॉम्पिटिटर। इफ यू आर नॉट क्रिएटिव देन यू कॉपी योर कॉम्पिटिटर।
तो कॉम्पिटिटर को उठाओ जो आपके जैसा काम कर रहा हो, तो बस उसका आइडिया उठा के कैनवा के अंदर और कैनवा के अंदर एआई वगैरह का इस्तेमाल करके पोस्ट निकाल दो। उस पोस्ट को डेली यू हैव टू पोस्ट ऑन व्हाट्सएप स्टेटस एवरी डे। सो फर्स्ट थिंग अभिव्यक्ति इज इक्वल टू धर्म। सेकंड थिंग सामान बिके ना बिके, दुकान रोज खुलनी चाहिए। क्या सामान बिके ना बिके, दुकान रोज खुलनी चाहिए। तो रोज आपका व्हाट्सएप पे स्टेटस चढ़ना चाहिए, रोज आपका फेसबुक के ऊपर कोई ना कोई पोस्ट आनी चाहिए। और यदि पुरानी पोस्ट डाल रहे हो, कुछ ना कुछ तो डाल दो, कुछ लिख दो, हाय लिख दो, गुड मॉर्निंग लिख दो, हाय फ्रेंड्स कैसे लिख दो, आज चड्डी नहीं पहने हो ना, ये लिख दो कुछ भी लिख दो, लेकिन आप चमकते रहो सितारे की तरह। तू धूप है, तू जम के निकल। अबे कहां निकलेगी जब इंटरनेट तेरे पास में, तेरे पास फोन है, तेरे पास फेसबुक है, सब कुछ है, तो कब निकलेगी फिर? तो आप निकलो ना, तो फेसबुक पर रोज लिख दो कुछ ना कुछ, ठीक है। और जो पुराना है उसको स्टोरी पे डाल दो, वाईटी पर कुछ वीडियो बना दो, तो बहुत ही बढ़िया, रोज का अगर वीडियो बना दो, और नहीं तो लाइव कर दो, नहीं तो कुछ पोस्ट डाल दो, नहीं तो कुछ शॉर्ट डाल दो। अरे यार अपने कंफर्ट जोन के अंदर कुछ ना कुछ सेल्फ एक्सप्रेशन ढूंढो और वहां पर कुछ एक्टिविटी कर दो, और आईजी पर कुछ एक्टिविटी कर दो, टीजे पर कुछ एक्टिविटी कर दो, दुकान रोज चल जाएगी। छोटी 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 स्टैंडर्ड एटॉमिक रिकरिंग टास्क, ये रोज 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 आप कर दो ये सारे, ठीक है। तो ये अच्छा, वसूली यहां से हम करते नहीं है, एसएस मार्केटिंग से हम वसूली नहीं करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एसएस मार्केटिंग एहसान की तरह करें और दुनिया में सब लोगों को फ्री मार्केटिंग फैसिलिटी दें। देयर आर लॉट ऑफ आईआईटीएंस देयर एंड एमबीबीएस डॉक्टर देयर एंड इंजीनियर्स देयर एंड सेवरल अदर पीपल देयर हु आर डूइंग सेवरल ग्रेट थिंग्स। सो ये सब आपका हो गया, एसएस लैंग्वेज आपका हो गया, एसएस संस्कृत के अंदर। अच्छा संस्कृत मैंने क्यों बताया, संस्कृत इज लाइक जो पीके के अंदर वो पुजारी चपेट मारने नहीं आता ना, पीके के अंदर जो पुजारी चपेट मारने आता है तो वो ऐसा राम दिखा देता है ना, ऐसा लगा कि ऐसा कृष्ण दिखा देता है ना, तो वैसा ही है। सो ये मेरा पर्सनल एक्सप्रेशन है। सो आई वांटेड टू शो टू दिस वर्ल्ड दैट आई नाइदर आई एम इंडियन और हिंदू नॉर आई एम इंटरनेशनल। मतलब अगर इफ आई स्पीक संस्कृत then it will give a message to the world that I'm Indian and traditional person, but if I speak Spanish then it will give message that I'm international. So I want to defy both the narratives, because I am not international or desi, I am superior person. Last year also I was just taking a stroll at India Gate, and I stumbled upon Alex from Austria, and I felt like he belongs to my tribe. He just joined my tribe, my superior society, and I spent several hours with him on the same day. We hung out around at India Gate, then we went to Lodi Garden as well, and then we went to his hotel at Lee Meridian also. So we had food also together, so we roamed around together, we did several things together just by meeting. So basically kya tha yaar, I was wearing some sandal. Yeah, so I was wearing some sandal and I was correcting my sandal and he was passing by, then I just started talking and we became like buddies. So मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं बताइए क्या बताना चाह रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब यू आर नॉट फोकसिंग, बैड स्टूडेंट। संस्कृत के बारे में। यस, गुड बॉय। तो संस्कृत से बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूं कि मेरी जो ट्राइब है ना, वो ऐसा नहीं है कि मैं इंटरनेशनल हूं या फिर मैं देसी हूं। मेरी ट्राइब क्या है, बस वो मैं तो उस दृष्टि से सोचा ही नहीं। So the whole point I'm trying to make is that the moment I met Alex from Austria, I started practicing German. Guten Tag, guten Abend, danke danke. So मैंने तो उस दृष्टि से देखा ही नहीं कि ये फिरंगी है, ये जर्मन है, क्योंकि मेरा तो धर्म ही जर्मन है ना, मेरा तो धर्म ही जर्मन है। मतलब जर्मन भी जर्मन नहीं, मतलब जर्मन का जितना मैं जर्मन बोल रहा हूं, जितना मुझे जर्मन अच्छा लगता है, उतना मेरा धर्म है। तो थोड़ा मेरा स्पेनिश धर्म है, थोड़ा मेरा संस्कृत धर्म है, थोड़ा मेरा अंग्रेजी धर्म है, थोड़ा मेरा ये धर्म है, थोड़ा मेरा वो धर्म है। तो वो मुझे मेरा धर्म का मिल गया, तो मेरा सगे वाला मिल गया, मुझे मेरा गांव वाला मिल गया। सो मैं इस सबसे ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि जो इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, जो इस 9 साल से कुछ भी समय बिताया है इन वन ऑफ द 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो वो मेरा धर्म का है। सो ये हमारे धर्म की एक सभा है, व्हाट्सएप सभा, व्हाट्सएप कबीला है हमारा। सो आपका ये हो गया स्टैंडर्ड एटॉमिक रिकरिंग टास्क हो गए। उसके बाद संस्कृत के अंदर भी यही काम होगा, मिनिमम 20 लोग वहां पर एक्टिव होने चाहिए, एंड एवरी पर्सन शुड बी सेंडिंग एटलीस्ट 1 piece of text every day and 1 voice note. And what is this? Duolingo is not there in Sanskrit. So SS chat के अंदर one can keep chatting with other people. And then Facebook.
and now there are some location groups. Location groups. Location groups. NCR, UP, Pune, West Bengal, etc., etc. So these are the prime groups teaching us superiority, SS marketing, SS language, Sanskrit, chats, Telegram also, Facebook also, and so this is our community, this is our WhatsApp University. कितना कितना देर का लेक्चर हो गया? 20 minutes. 20 मिनट का हो गया. आपको इसमें कुछ कहना है? आपको समझ में आ गया? बेसिकली आपको ये सारा ऑपरेशन करना है. क्या आपको यहाँ पर ये रिकरिंग इवेंट्स की लिस्ट दी जाएगी, वो TOS के अंदर वो रिकरिंग इवेंट्स रोज होने चाहिए. ठीक है. एसएस मार्केटिंग के अंदर एसएस मार्केटिंग ABCD की जिम्मेदारी आपकी, और उसके अंदर P नंबर पर पोकले आ जाएगा और वहां पर डिटेल आ जाएगी, वो आपकी जिम्मेदारी है. फिर सार्ट आपकी जिम्मेदारी है. एवरी डे यू हैव टू पुट ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस दैट यू दिस इज योर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस. नाउ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के अंदर आपको अपना आइटनरी होता है. आइटनरी मींस व्हाट एग्जैक्टली आर यू गिविंग एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू चार्जिंग. सो लुकिंग एट योर एलिजिबिलिटी यू हैव टू थिंक. For a fair example, yesterday we discussed, I believe we discussed an example that in 1,000 rupees, you will, what you will do, you will take care of YT or Facebook or IG per month. Okay, per month in 1,000 rupees, you will take care of YT, Facebook and IG. This was a raw thing we decided yesterday, but if you look at it again and you try to customize it atomically, you can understand how you can create a post, and once you have your post ready, then you can keep posting it everywhere. You can keep posting on WhatsApp status, Facebook story, Instagram story, etc. So all these things are there. और कुछ आप बोलिए, कुछ बोलना है तो इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए. ये लैंग्वेज आपको रोज की जिम्मेदारी है. आपको कम से कम 20 लोग को उसके अंदर एक्टिव कर रखना है और 10 लोग उसमें एडमिन रखने हैं. आपको जो एक्टिव है ना वही एडमिन है. ठीक है. तो ये सब काम है. संस्कृत में भी ये काम करना है आपको. कॉलिंग वगैरह कर करके धीरे धीरे लोगों को आपको मोबिलाइज करना है. और क्या है. और ये सबसे बड़ी जो चीज है वो सबसे पहली जो चीज है और सबसे आखिरी जो चीज है वो है जून मनी. वो तो आपको याद रखना है. जून मनी की कैलकुलेशन ये है. ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 300 पीपल वी हैव. ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स मिलाकर, इन सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स मिलाकर इसमें से 100 लोग ही पैसा देते हैं. ठीक है. 100 लोग ही पैसा देते हैं. इसमें से प्लस कुछ वेरिएबल हैं, वो 20 से लेकर 80 करीब लोग हैं. तो 20, 50, 60, 70, 80 उभार के लोग हैं. वो हमारे पर्सनल कांटेक्ट में रहते हैं. वो हमारे से यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़ते, वो सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस से जुड़ते हैं. और कुछ लोग तो उससे भी नहीं जुड़ते, लेकिन वो पैसा भेज देते हैं. लेकिन उनकी संख्या 20 से 80 के बीच में है. तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये तो डिपार्टमेंट में देख लूंगा और ये 100 लोग तो पैसा दे ही देने वाले हैं. बट इसमें से कुछ 200 ऐसे बचे हुए हैं जो पैसा नहीं दे रहे हैं. तो आपकी जो जिम्मेदारी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये 200 लोग जो बचेंगे, इसमें से कितने का पैसा निकलेगा ये अपने को देखना है. जितने का भी पैसा निकलेगा. कैसा पैसा निकलेगा? फोन मारने का. एक एक को पकड़ पकड़ के फोन मारने का रोज, और जितना पैसा निकल जाएगा उतना पैसा निकल जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 days, बिकॉज यू विल बी हियर फॉर नेक्स्ट 5 days एंड देन समवन एल्स विल बी देयर. सो ये 200 का पैसा निकल जाएगा. और 200 में से देखते किसका पैसा निकल जाएगा. तो मानकर देखते हैं अरे 50 का पैसा निकल गया. मान लीजिए 50 का पैसा निकल गया. अब ये 100 का पैसा तो आ ही रहा था, और ये 50 20 में से आ ही जाएगा. ये 50 आगे 200 तक पहुंच गया, हो गया टारगेट. ठीक है. और टाइम बचेगा तो हमारे पास 4000 कॉन्टैक्ट्स हैं टोटल. उनकी सफाई और करनी है. ठीक है. मतलब सफाई अपने आप में डबल ग्रेस वाली चीज है, क्योंकि सफाई करोगे तो और क्लैरिटी आती है, और सफाई करोगे तो वो और उस व्यक्ति के पास पहुंचते जाते हो जो पैसा देने वाला है. ठीक है. तो पैसा
जहां से मिले हमको ले लेना चाहिए। तो ये हमारा एटॉमिक जॉब है हमारा एटॉमिक जॉब है कि जितने भी लोग हमारे पास आए उनमें से जिसका पैसा हमें मिल सके, जितना जितना मिल सके वो हमको ले लेना है। बाकी जॉब तो हम कर ही रहे हैं जीकर, just by the virtue of being active on WhatsApp, just by the virtue of being on all these 5 platforms. I'm doing my job for past 9 years without a vacation. So उसके बदले में जो आखिरी काम बचता है हमारे लिए वो ये है कि उनसे पैसा कलेक्ट करना हर महीने। तो और आपको कुछ कहना है तो कहो यार, इसके अंदर नहीं कहना है तो फिर खत्म करें इस बात को। बोलिए क्या कहना है, क्या पूछना है आपको इसमें? सबको समझ में आ गया? सर ये ABCD थोड़ा क्लियर नहीं है। ABCD क्लियर क्या है, क्या किया है जितने भी सेलर है ना उन सबके नाम लिख लिए हैं और उनके साथ उनके नंबर भी लिख लिए हैं और उनको ABCD क्रम में जमा दिया है। लेकिन अब देखा गया है कि कुछ कुछ ऐसे हैं जिनके नंबर नहीं है, तो उनको भी फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लेकर पूरा नीचे लेकर आ गए और एक डॉटेड लाइन मार दी है। तो ऊपर वाले भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में, नीचे वाले भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में, बट ऊपर वाले सबके पास नंबर हैं लिखे हुए और नीचे वालों के पास नाम है, नंबर नहीं लिखे हुए। समझ गए ना? तो वो नीचे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो उसी की जिम्मेदारी है, इतनी टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो कभी कोई दिख गया अपना जो आदमी पैसा दे रहा है, हाँ ऐसा कोई आदमी जो पैसा दे रहा है, हाँ 1000 दे रहा है, 500 दे रहा है, 2000 दे रहा है, 5000 दे रहा है, क्योंकि 10-10, 15-15 हजार रुपए भी देते हैं लोग। तो अब उसको हम पेन नहीं मारेंगे कि वो खुद ही व्हाट्सएप पे स्टेटस, व्हाट्सएप टेक्स्ट देखे और उसको एडिट करके वापस भेजे तो वो टेंशन आपको लेनी है क्योंकि हम आपको पैसा दे रहे हैं। तो अब समझ आ गई ना बात? ये तो हम आपको बता देंगे ये आदमी, इसका पैसा आता है तो इसका नंबर हम बता देंगे आपको, नंबर डाल के इसको बढ़िया सजाकर इस टेक्स्ट को ऊपर डाल दो। अभी जो टेक्स्ट है ना ये हर जगह घूमेगा, ये तो पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूमेगा, ये ABCD मार्केटिंग का काम है ये तो। ठीक है, हर जगह घूमेगा और व्हाट्सएप के साथ साथ ये तो फेसबुक पर भी घूमेगा और टेलीग्राम पर भी घूमेगा और हमारे स्टेटस पे भी घूमेगा, और आप भी घुमाइए इसको अपने स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि अब तो कुछ लोग ऐसा सोच कर आते हैं कि मार्केटिंग में क्या है, ओ यहाँ पे तो कम लोग, यहाँ पर कुछ बेच दूंगा तो क्या हो जाएगा। अरे वो एक एक्सरसाइज है, वो एक प्रार्थना है, वो एक इकिगाई एक्सप्रेशन है, वेल्थ कॉन्शियसनेस एक्सरसाइज है, तो वो करनी है। ठीक है, और ये यहां पर नहीं करनी है, हर जगह जाके करनी है। अपने शहर के व्हाट्सएप ग्रुप में घुस जाना है, अपने शहर के फेसबुक ग्रुप्स के अंदर घुस जाना है और उसके अंदर जहां जहां पे देखना है कि क्या क्या हो सकता है, जो हो सकता है वो करना ही करना है। नहीं तो फिर सोनम दीदी आ जाएगी कुल्हाड़ी लेके अमेजन से मारने। तो बताओ और क्या डाउट आपका बचा है? कुछ नहीं सर, ओके। देन कट।